Good afternoon, friends. I am going to present, the coming up issue of nowadays everywhere, environment change and sustainable development. Particularly, I want to discuss about the mountain area, the Himalayas. As we know that nowadays there is a increasing realization everywhere in the world, and it is also in the global agenda that our climate, our environment, it is changing rapidly everywhere in the globe, everywhere on the upper surface of the earth. And we know that there was a World Summit on Sustainable Development in 2002 in Johannesburg, where the scientists discussed about the rapid climate change, rapid global warming, and sustainable development. And then the environmental problem of the sensitive areas, we can say sensitive areas as the mountains, as the deserts, as the seashore. These are one of the sensitive areas, physiographic, in terms of physiography, because of these areas are rich in terms of biodiversity, in terms of environmental conditions, and so on. We know that the sustainable development implies the use of ecological system in a manner that satisfies current needs without compromising the needs of option of future generations. जैसे हम जानते हैं कि जो चिरंतर की बात हम करते हैं, चिरंतर शाश्वतता की जो बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वट एवर रिसोर्सेज वी आर यूजिंग टुडे, जो रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें देखना है, बिकॉज दे विल आल्सो डिपेंड्स ऑन द सेम रिसोर्सेज वट एवर वी आर यूजिंग टुडे. जो रिसोर्सेज जैसे वाटर है, लैंड है, फॉरेस्ट है, और जो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं, इनको जो हम यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर जनरेशन ने भी उन्हीं को यूज करना है. तो ये एक ज़रूरी है कि उस चिरंतरता को बनाए रखने के लिए आज उन्हें सस्टेनेबल वे में यूज करना, उपयोग करना बहुत ज़रूरी है. और इसके लिए वी नोज दैट देर आर मैनी environmental issues coming up nowadays, that if we talk about our natural environment is the resources available our surroundings, and natural resources, they are the gift of nature we are getting on the earth. Land is a gift of nature, water in the form of river, in the form of in the form of pond, in the form of lakes. It is the natural gift we are getting. Then soil, forest, grassland, biodiversity, fisheries, ecosystems, minerals, salts, fossil fuels. These all are the natural. These all are the components of the natural environment. Then in the last few decades, the human beings, he began to degrade the natural environment because of the increasing of the population, increasing of the demand, increasing of the consumption level. So it means the natural resources, it degrade very fast. Then it becomes important to prevent nowadays to degradation of this environment. How to prevent, how to conserve these. ये एक बहुत आज का एक दिस इज़ अ चैलेंज कि हम कैसे जो ये बहुत रैपिड जो एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, जो कंजप्शन लेवल बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है, जो हमारा जो बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी है हमारे रिसोर्सेज की, उस लिमिटेड रिसोर्सेज को हम बहुत तेज़ी में जो डिग्रेड कर रहे हैं, हम कैसे इसको कंजर्व करें. कौन सी ऐसी टेक्निक्स है, कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीक़ों से कि हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, इसको फिर दोबारा से इसको पुनर्जीवित कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं, ये कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, इस पर आज का ज़रूरत है कि हम इस पर बात करें. देन नेचुरल रिसोर्सेज विद एनवायरनमेंट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स यूजिंग, मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट.
अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखते हैं, जैसे कि जो आईपीसीसी का जो डेटा है, इंटरनेशनल पैनल ऑन गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी का जो डेटा है वो ये बताता है कि 250 ईयर्स बैक, 250 साल बिफोर द इंडस्ट्रियल एज, जो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड था या जो कार्बन फिक्सिंग था पूरे इसमें, नाइट्रोजन फिक्सिंग और कार्बन फिक्सिंग था, CO2 एमिशन था, इट वाज वेरी लेस. इट वाज ओनली 80 ppm इन 1742. It was only 80 ppm particular per millions उस समय प्री इंडस्ट्रियल एज. लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं तो ये जो डाटा बता रहा है टुडे, आज का जो डाटा है वो ये कहता है कि CO2 का जो एमिशन है इट इज़ टुडे 375 ppm. रॉकेट की तरह ये 250 साल में ऊपर की तरफ गया है. इसका जो ग्राफ है इतना तेजी में बढ़ा है. एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ, क्योंकि उस समय बहुत लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी, और जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हुई है उनमें कहीं ना कहीं जो कार्बन फिक्सिंग है इस पूरे एटमॉस्फेयर में उसको बहुत तेज़ी में आगे बढ़ाया है. दिस इज़ अ वन मॉडल कि जो सस्टेनेबल है किसी एक, ये माउंटेन एरिया का एक एग्जांपल, आई एम साइटिंग वन एग्जांपल हियर. This is a sustainability of Himalayan environment. We can see that the three components, they play a vital role in the sustainability of. One is the ecology, then economy and society. These are the three major components. और इनसे ही हम कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंटल क्वालिटी, जिस पे कि हम अभी आगे चल करके मैं इस पर और आगे डिटेल्स में जाएंगे हम. लेकिन ये तीन ऐसे, ये मतलब हम ये कह सकते हैं these three are the basis of the sustainability of the environment. These three components are the base of the sustainable environment. There are two types of change. When we talk about the environmental change, there are two types of change. One is a systematic change. Systematic change, which while taking place in one locale can affect change in the system elsewhere. एक इस तरह का change है कि किसी एक जगह पर कोई change हुआ और उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो ग्लोबल होता है. लोकल लेवल पर किसी चीज़ पर चेंज आया और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर हुआ. जैसे कि हम कहते हैं कि यूएस का जो आज कंजप्शन लेवल है जो CO2 एमिशन का है, इट इज़ 22%. अगर हम पूरे ग्लोब का पर्सपेक्टिव में लेते हैं तो 20, अगर अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन का CO2 एमिशंस हुआ है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे ग्लोब पर पड़ा है, वो पूरे अर्थ पर उसका प्रभाव पड़ा है. दिस इज़ ए सिस्टमैटिक चेंज. And then we have the cumulative change. Cumulative change is कि जहाँ पर refer to localize but widely replicated, where a change in one place does not affect changes in other places, as deforestation. Deforestation किसी एक लोकल में है और ये धीरे धीरे क्यूमुलेटिव होकर के ये फिर डिफॉरेस्टेशन दूसरी जगह पर, फिर डिफॉरेस्टेशन ऐसे क्यूमुलेटिव होकर के पूरे ग्लोब पर इसका इफेक्ट पड़ता है. So this is a example of the second cumulative change. If we talk about the Himalayan area, because there is a strong relationship of mountain and plains. There is a relationship between the highland and lowland area. As we know, the maximum rivers, they originate from the mountain areas and it flows in the downstream areas, plain area. और ये फीड करता है, जो माउंटेन एरिया से जो रिवर हमारा निकल रहा है वो प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और अदर एक्टिविटीज़ को फीड करता है. सो वी कैन से देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द हाईलैंड एंड लोलैंड. एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. और इसमें मुझे एक एग्जांपल याद आता है पंजाब का और हिमाचल का कि एक जो चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं शुरू में हिमाचल और पंजाब के, हाईलैंड एंड लोलैंड रिलेशनशिप. तो इसमें ये था, प्रताप सिंह कैरो जी ने कहा था कि तुसी असी सब्जी देवो, असी तुसी अनाज देवेंगे. सो देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ लोलैंड एंड हाईलैंड. Highland Himachal area is good for the horticultural and fruit production, and Punjab is good for the crop and agriculture production. So there is a relationship कि आप जो है इस पर अपना मास्टरी करिए horticulture crop पर और हम अपना agriculture पर अपना production ज़्यादा बढ़ाएंगे और हमारा आपस में एक म्यूचुअल एक ये exchange इस तरह का होगा.
तो हम ये कह सकते हैं कि जो हायर लैंड है और लो लैंड है उनके बीच में एक रिलेशनशिप रहता है, बहुत पहले से है। और उसको जानना हमारे लिए जो लो लैंड एरियाज़ में है उनको भी उस हाईलैंड एरिया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हिमालयाज़ के बारे में जानना, माउंटेन एरियाज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो वी हैव ए इंडियन हिमालय स्प्रेड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, एंड इट इज़ 2,800 kilometer it extends and inhabited by approximately 70 million people, and 49 million livestock population, which is 9% of India. But there is only 17.8 million hectare of land is under forests to meet their increasing demand. Forest का जो हिस्सा है वो बहुत कम है और पहले से जो है बहुत तेजी में डिग्रेड हुआ है। इसके अलावा जो 50% of land of the region is degraded because of external as well as internal pressures. ऐसा कई ऐसे एरियाज़ हैं जो कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से जो फॉरेस्ट है वो डिग्रेड हुए हैं। वी कैन सी एग्जाम्पल ऑफ झूमिंग एग्रीकल्चर, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया, उसमें कि शिफ्ट करते हैं एग्रीकल्चर को, एक बार फॉरेस्ट को कट करके उसमें एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें 3 साल फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करके फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे फॉरेस्ट एरिया में जाके फॉरेस्ट को कट करते हैं, फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं इसने कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट रिसोर्स है माउंटेन एरिया का उस पर बहुत प्रेशर उस पर डाला है। एंड जो रिमोट सेंसिंग डाटा फॉर सैटेलाइट डाटा, इट आल्सो इंडिकेट दैट द फॉरेस्ट कवर ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस रीजन hardly it is only 11% of total geographical area of the country. This is a comparative status of land use of Himalayan states. We can see that the Arunachal Pradesh 85%, above 80% comes under the forest land, and then the agricultural land is too less in Arunachal Pradesh. So this is a comparative study of the states, different states. Then this Himalayan region is also known as a third pole of the earth because it is a significance, global significance. 17% of the glaciers are located in this area. 15,000 glaciers as largest storage of fresh water and sustenance to over 200 million people in the Himalayan region. This is the 10 important river basins in Himalayan areas. In west, you can see the Indus river basin. And then we have a huge river basin, Ganges river basin, and then Brahmaputra, it is one of the largest river basin in Himalayas, जो कि नीचे को फ्लो होकर के और जो प्लेन एरियाज़ है उसको इरिगेट करता है, और इस पर बहुत पॉपुलेशन जो डाउन स्ट्रीम पॉपुलेशन है, डाउन स्ट्रीम जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर डिपेंड करते हैं। एंड वी आल्सो नो दैट मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन जो है वो इन्हीं रिवर बेसिन्स में शुरू हुई हैं, इन रिवर बेसिन्स में ही बनी है। As we know that there are 4 characteristics of the mountain areas. One is it is inaccessible. The mountain areas in any part of the world, it is an inaccessible, and this inaccessibility it is a major constraint for the mountain development because of the the inhabitants of this area, they lives in isolation. The villages located in the isolation, in the high altitude areas. Then the second is a marginality. Maximum population lives in a marginal conditions because of the low caste communities. They are marginalized communities and they are suffering overwork pressure. As we know that the women of the mountain areas, they also suffer from the overburden of the workload. They are also engaged in the primary activities, primary occupations. As we know that the agriculture, they practice, most of the people living in this area, they practice agriculture, and they also collect fodder and fuel, and they are associated with the animal husbandry activities. Male are concerning to income generation activities, so they have dominant role in family as well as in society. Then fragility, this is the other the characteristic of the mountain areas. Fragility in terms of this is prone of earthquake, landslide, cloudburst and so on. Then vulnerability, जो ये इस तरह का जो इसका जो करेक्टर है, inaccessible, marginal and fragile, ये इसको vulnerable बनाता है। vulnerable का मतलब कष्टों से घिरा हुआ एरिया,
एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा प्रदेश जो कष्टों से घिरा हुआ है, जो फ्रेजाइल है, अर्थक्वेक प्रोन है, जिसमें मार्जिनल कम्युनिटी रह रही है, जो इनएक्सेसिबल है, जिसमें हर साल लैंडस्लाइड आ रहा है, जिसमें हर बार अर्थक्वेक, हर 10 साल में अर्थक्वेक रिपीट हो रहा है, कम्युनिटीज़ जो हैं बहुत दूर, और जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, बहुत लेस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, वो उनको पॉवर्टी लेवल को बढ़ाता है, उनके पॉवर्टी लेवल को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। तो ये हम देख सकते हैं, दीज आर सम फ्यू पिक्चर्स वी हैव, कि इस तरह से जो फ्रेजिलिटी इसकी है, ऐसे जो कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, जो लिंक करते हैं, जो ब्रिज, वो किस तरह से अर्थक्वेक के टाइम पर वो डैमेज हो जाते हैं, और कई समय तक, कई वर्षों तक, कई महीनों तक जो है वो पूरी एक जो कम्युनिटी है, पूरा एक एरिया है, वो कट ऑफ हो जाता है बेसिक फैसिलिटीज से। जैसे हम देख सकते हैं, दिस इज ए वर्णावत, उत्तरकाशी वर्णावत लैंडस्लाइड, जो कि बहुत रहा है, रिनाउंड रहा है, इसने पूरे एक टाउन को नीचे दबा दिया आपने। इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक इस एरिया का है। ये बिल्डिंग को हम देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा कोलैप्स हुआ है अर्थक्वेक के दौरान, ये अर्थक्वेक में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हम देख सकते हैं टावर्स, जो कम्युनिकेशन के जो टावर्स हैं, वो अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड के दौरान ये डैमेज हो जाते हैं, और ये पूरी तरह से ये जो सुविधाएं हैं, जो नागरिक सुविधाएं हैं, इनको डैमेज करती हैं। These are the important resources available in the mountain areas. The forest is one of the rich resource available, then land and water. These are the three important resources available in the mountain areas. Then the peoples have a rich traditional knowledge. Traditional knowledge in terms of they have, the Vedyas, जो healers हैं, जो पुराने समय से जो इनको जो मेडिसिनल प्लांट्स को जो यूज करते थे और उनका दवाई बना करके बेचा करते थे, इस तरह का नॉलेज वहाँ पर है। इसके अलावा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, जो टेक्निक्स को विलेजर्स ने जिनको बनाया है, इनोवेट किया है, वो कहीं से बाहर से कोई इम्पोर्टेड नहीं है। इस तरह का ट्रेडिशनल नॉलेज वहाँ पर ऑलरेडी है लोगों के बीच में। वी कैन सी हियर इन द लेफ्ट, दिस इज ए वाटर मिल विच इज़ this water mill, this is developed by the villagers only, and ये जो traditional grinding की technique है। then this is a house carving we can see here in the left, नीचे जो है house types का, और राइट हैंड पे दिस इज कंट्रोल फायर बर्निंग। एक अपने खेत में वो कंट्रोल बर्निंग करते हैं, इस तरह से जंगल में आग नहीं लगाते हैं, फॉरेस्ट फायर इस तरह से नहीं करते हैं, लेकिन एक कंट्रोल बर्निंग का एक सिस्टम है जो कि बहुत ही लिमिटेड एरिया में वो अपने उसको जलाते हैं। सो दीज आर द रिच ट्रेडिशनल नॉलेज दे हैव इन द माउंटेन पीपल्स दे हैव, एंड these mountains also provide ecosystem services in terms of oxygen। जैसे कि अभी आप जंगली जी को भी सुनेंगे कि कैसे माउंटेन्स जो है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, और वो ऑक्सीजन वो ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह की जो सर्विसेज हैं, या हम ये कह सकते हैं जैसे सॉयल न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉयल न्यूट्रिएंट्स भी एक सर्विस है जो सर्विस माउंटेन्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं जैसे वाटर है, फ्रेश वाटर ओरिजिनेट हो रहा है, वो ओरिजिनेट होकर के ग्लेशियर से नीचे को आ रहा है। दिस इज अ सर्विस प्रोवाइड बाय द फिजियोग्राफी रीजन। These are some, the disadvantaged group of this society, of this area. The women, they are collecting fodder and fuel from the forest, from the near forest, and then the childrens, they are also the disadvantaged, the group of the society. After these, these problems we have seen in the hilly area, we with the university and with some NGOs we started some work in the university. It is 12 kilometer, this watershed is a 12 kilometer from the university, and हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स, रिसर्च स्टूडेंट्स को उसमें जोड़ करके और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने कुछ करके उसका स्टडी करके एक वाटरशेड डेवलपमेंट का एक्टिविटीज़ शुरू किया है, जो कि इस तरह से है। टकोली घाट एक एरिया है जिस एरिया में हमने इसको शुरू किया है। We implement a program of management of natural resources through watershed management in this area. Proposed area is the catchment of Alaknanda River. It is the mean altitude of the watershed is between 900 meter. Kakkarpali is the place, and the 2278 meter in Chandrabadni. It is the highest point of this watershed. The total population of this watershed is 7,707, and the total male population is 3,539, and the female population is 4,168. It shows that the sex ratio of this the female population is more than the male population, क्योंकि जो मेल है वो जॉब्स के लिए प्लेन्स को चले माइग्रेट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, और ये लगभग कंडीशन सभी हिमालयन एरिया की है।
एंड देर आर 289 फैमिलीज अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। ये कुछ बेस लाइन सर्वे जो वहाँ पर किया है शुरू में, उसमें से निकाला कि टोटल फैमिलीज में से 289 फैमिलीज आर लिव्स अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन, ताकि इनको फ्यूचर जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनको टारगेट कर सकें। एंड इट अकाउंट्स 38% ऑफ द टोटल हाउस होल्ड्स। द वाटरशेड फॉल्स अंडर लेसर हिमालयन रीजन। The annual rainfall is 1968.1 millimeter and average minimum and maximum temperature are 8.78 degree minimum and 37.8 degree maximum. This is the location of the watershed, Takoli Ghat watershed. It is located in district Tihri Garhwal and falls under the Alaknanda catchment. The objective of the project is promotion of sustainable livelihood of this watershed through upgradation of natural resources and implementing income generating activities in this area. Then to reduce drudgery and stress among women through regeneration and management of natural resources. And third is to organize capacity building programs for the communities. Researchers ने, scholars ने सबसे पहले जो existing natural resources उस watershed में थे, because we know that this is a watershed is only a unit which is appropriate for the developmental activities, क्योंकि ये एक माइक्रो लेवल का यूनिट है और किसी भी एरिया में हम बहुत सारे ऐसे हमारे पास में सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं जहाँ जो कि वाटरशेड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा उन्होंने वर्क किया है। तो माइक्रो लेवल पर डेवलपमेंट करने के लिए वाटरशेड एक बहुत अप्रोप्रिएट यूनिट हो सकती है। और इसको देखते हुए वहाँ पर कुछ रिसोर्सेज का हमने असेसमेंट किया है, जैसे लैंड रिसोर्सेज। वहाँ पर किस तरह का लैंड रिसोर्सेज है, लैंड में इरीगेटेड लैंड कितना है, अनइरीगेटेड लैंड कितना है, इसके अलावा जो फैलो लैंड है, करंट फैलो लैंड है, जो डिफरेंट जो कैटेगरीज है लैंड यूज़ की, उन सब कैटेगरीज को इस पहले एसेस किया है। और इसके अलावा अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ पर आउट ऑफ दीज 62.33 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज अंडर इरीगेशन इस पूरे वाटरशेड में, एंड दिस अकाउंट ओनली 4.6% ऑफ टोटल लैंड। यानी हम ये देख सकते हैं कि ये केवल 4.6% जो है इस पूरे वाटरशेड में इरीगेटेड लैंड अवेलेबल है, जो कि बहुत ही कम है। अगर हम पूरे स्टेट के उसमें लें या इंडिया के कंपेरिजन करें तो उसमें बहुत लेस है। इसके अलावा 572 हेक्टेयर लैंड है, इट इज़ अनइरीगेटेड लैंड। 565 hectare of land it is and 41.9% of total land is under the villages which is cultivable wasteland। एक ऐसा लैंड वहाँ पर ज़्यादा वाटरशेड में कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया गया है जो कि बहुत तेज़ी में पहले एग्रीकल्चरल लैंड था और वो बहुत तेज़ी में जो है वेस्टलैंड में कन्वर्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन, हैवी माइग्रेशन। इस तरह से 92.25 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन। दिस इज रग्ड area, and the net land holding per household varies from village to village within the watershed. The average land holding is 1.77 hectare, which is too less. Cultivable land available per household is only 0.91 hectare. Irrigated area per households is very negligible. Then we also assess some the water resources available in that area, total number of natural springs, total number of streams, and their characteristics, seasonal, perennial, and their different characteristics we are also assessed. This is the land use of this watershed. Two categories: one is a forest land and another is a agricultural land in this area. हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रीम के साथ along this stream दोनों तरफ जो है एग्रीकल्चरल लैंड है, which is only 4.7% is irrigated land, और इसमें ज़्यादा जो है वो रेन फेड एग्रीकल्चर है। Then we identified some key issues of this watershed. जैसे this stream, Takoli Ghat stream, it is a fourth order stream of this watershed, and the whole area of this watershed is suffering with water scarcity problems, and there is only one perennial streams in the area. It is fourth order stream and it is fed by the first, second and third order streams. ये अलग अलग जो streams का जो order है उसको categorized करके, क्योंकि ये देखा गया है कि जो हमारा स्ट्रीम का जो ये वाटरशेड का जो स्ट्रीम है टकोली घाट, इसको जो फीड करने वाले फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स हैं वो बहुत तेज़ी में ड्राई अप हो रहे हैं, वो बहुत तेज़ी में सूख रहे हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करके, क्योंकि उसका सीधा इफेक्ट कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम है उस पर पड़ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम का। जो फर्स्ट ऑर्डर हमारे स्प्रिंग्स हैं उनके सूखने के कारण इस पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है। और जो हमारे पास में अच्छे जो एग्जांपल्स हैं, सुखो माजरी हैं या अदर जो वाटरशेड्स के हैं, हिल्स में भी कुछ ऐसे सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं, तो वो वाटर रिचार्ज के लिए फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स को ही उन्होंने टारगेट किया है।
लक्षित बनाया है कि उनको रिजुविनेट करने के लिए, उनको रिचार्ज करने का वहाँ पर उनको टारगेट किया है. This is the slope aspects of the watershed, and it is expected from the satellite imagery and different categories. It is we also classified it in 12 categories. The slope of north, क्योंकि slope जो है it plays important role. जो slope है वो अपना इसका रोल होता है किसी भी watershed में, और different categories बना करके हम देख सकते हैं इसमें, क्योंकि it is associated with the vegetation cultivation, with the agriculture cultivation. slope का एक बहुत important role होता है इसमें. rainfall जो receiving rainfall है उसमें slope का बहुत important role होता है. तो ये categorize इसको पूरे watershed को different slopes में categorized किया है. north, northeast, east, southeast, south, and then northwest, west and southwest. And we work in 34 villages of this watershed, and we started to implement the three major component of this area. One is promotion of sustainable livelihood. Promotion of sustainable livelihood through these components. One is micro planning and need assessment of 20 villages through the participatory rural appraisal, and then formation of the farmer groups. Third is the income generation activities from the 20 women groups of this watershed. And for the landless families, for the poor, for the people living below poverty line, we introduced the chicken rearing for the extremely poor families. And then to promote the organic farming of this watershed, we also implement vermicompost pits at the household level in this watershed. These are some activities of the farmer groups in this watershed, and our experts of the university, we are guiding and provide training to the community. These are the farmer groups we have, जो कि अलग अलग तरह से अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हम लोगों ने इसको एक लिंक किया है यूनिवर्सिटी के साथ में. जो फार्मर्स का प्रोडक्शन है उसको यूनिवर्सिटी में वी हैव 200 प्रोफेसर्स एंड रीडर्स जो वहाँ पर हैं वो उसका परचेज करते हैं, उस प्रोडक्शन को जो फार्मर्स का है. सीधे लिंक है हमारे पास में यूनिवर्सिटी का टीचर्स का, और वो ख़रीदते हैं. पिछली बार लगभग 45,000 का जो है वो सेल हुआ है फार्मर्स का, जो कि सीधे सीधे यूनिवर्सिटी के पास में है. तो एक जो ह्यूज मार्केट लिंकेज के बजाय हमने एक छोटा मॉडल डेवलप करने का कोशिश किया है कि जो फार्मर्स का प्रोडक्शन है वो लोकल लेवल पर ही सेल हो जाए, और एक एश्योर मार्केट उसको फार्मर को मिल जाए, एक एश्योर मार्केट उसके पास में रहे लोकल लेवल पर. तो दिस इज़ वन प्रैक्टिस वी हैव implemented, started here. Then this is the vegetable cultivation done by the farmers. This is some activities. Farmer group members harvesting their crops, their production. Training provided by the university staff to the farmers. This is the hybrid seeds provided by the university to the farmers. These are the women groups जिनको एक्टिवेट किया है, स्ट्रेंथनिंग किया है वुमेन ग्रुप्स को, एंड एक वुमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट की अप्रोच को यहाँ पर फॉलो किया गया है. These are some interaction with the farmers, with the communities, and documentation of the farmers, their traditional knowledge. Poultry farming, it is also introduced in this area. Poultry farming only for the landless people, because of the scheduled castes families in this area. Most of the families, they are landless. उनके पास में ज़मीनें नहीं हैं, तो उनको विकल्प के रूप में हम इस तरह का पोल्ट्री फार्मिंग और इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं ताकि वो अपनी इनकम को बढ़ा सकें. और पोल्ट्री में भी क्रोयलर एक जो स्पेसीज़ है, क्रोयलर एक मदर यूनिट है वहाँ पर, और क्रोयलर जो है वो ज़्यादा सक्सेस है माउंटेन्स में, ये देखा गया है. मुझे लगता है और भी जगह में ये रहेगा, लेकिन इसका मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत कम है, और बहुत अच्छा इसका जो पर हेड इनकम है वो लगभग, जिसका ज़ीरो इनकम था 3,000 रुपीज़ पर मंथ, अब वो फैमिली हाउस होल्ड जो है वो कमाने लगा है. ऐसी फैमिलीज़ को ही इसमें लिया है जो कि पुअर हैं, गरीब हैं, और SC फैमिलीज़ हैं. वर्मी कंपोस्ट is also introduced to promote the organic farming. These are the pits, वर्मी कंपोस्ट पिट्स. और इसमें अभी असेसमेंट हमारा चल रहा है, यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स असेस कर रहे हैं कि प्रोडक्शन में कितना प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दिस एक्टिविटी.
तो वो अभी असेसमेंट चल रहा है। इस तरह का लगभग वहाँ पर 140 वर्मी कंपोस्ट पिट्स हमने 140 हाउस होल्ड्स को वहाँ पर दिया है, प्रमोट किया है। बी कीपिंग इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन दिस एरिया एंड 43 bee boxes to the target families also provided, and out of these 43 bee boxes 14 boxes are successfully producing honey। अभी बहुत छोटे स्तर पर है क्योंकि इसका हमको कुछ नेगेटिव वो भी कुछ मिला है इसमें रिजल्ट्स। शुरू में कुछ हम लोगों से कुछ गलतियां हुई, ट्रेनिंग्स बहुत अच्छा नहीं दे पाए, और वहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इसको एकदम नई एक्टिविटी थी उनके लिए, ट्रेडिशनल वो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो एक नई एक्टिविटी होने से इसमें थोड़ा सा हम लोग सक्सेस भी नहीं रहे, लेकिन अभी भी 14 बॉक्सेस जो हैं उसमें हनी ले रहे हैं, जो कि एक आगे आने वाले टाइम पर हमारे लिए एक कहीं ना कहीं वो दिशा दे रहा है। और लगभग बहुत कम है अभी इनकम, इट इज़ ओनली 800 रुपीज़ पर ईयर, फैमिली पर फैमिली 800 रुपीज़ वो अर्न कर रही है। Then the second component we introduced in this area, that was the reduced drudgery and stress among women, और इसके अंदर 4 और एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया है। One is promotion of fodder plantation, second is organic vegetable cultivation, third is management and conservation of water structures and resources, and fourth is introducing aromatic and medicinal plants। ये क्योंकि वुमेन जो है वो सबसे ज़्यादा वो हम ये कह सकते हैं कि प्रभावित हैं उस पूरे एरिया में, और ये भी देखा गया है कि जो कैश मनी ना होने के कारण, उनके हाथ में नगद पैसा ना होने के कारण उनका आवाज़ भी बंद रहती है। वो क्योंकि नगद पैसा नहीं है तो बोल भी नहीं पाती हैं, वो अपने अधिकार भी नहीं कर पाती है, या कहीं पर मीटिंग्स में भी नहीं बोल पाती है। तो एक ये सोचा गया, हम सब ने ये बात सोचा गया कि कैसे इनका इनकम को जनरेट कर सकते हैं, कैसे इनके पास में नगद पैसा आ सकता है। तो उसके लिए कुछ, और इसके अलावा जैसे जो प्लांट फॉडर है, फॉडर का वो फ्यूल और फॉडर कलेक्शन करने के लिए कम से कम 8 to 10 किलोमीटर वो डेली ट्रैवल करती है, जो कि धीरे धीरे अभी कम हुआ है, कुछ ऐसे एरियाज़ में कम हुआ है। लेकिन ये सोचा गया कि ऐसे कोई हाई ब्रीड या हाई प्रोटीन ऐसी ग्रासेस जो हैं आजकल, क्या हम उनको उनके घर के नज़दीक प्लांट कर सकते हैं। इस तरह से पूरी ये डिस्कशन से यहाँ पर ये निकला, एंड देन वी इंट्रोड्यूस्ड दीज एक्टिविटीज़ इन दिस एरिया। वन इज़ फॉडर प्लांटेशन, नेपियर ग्रास प्लांटेशन। नेपियर ग्रास जो है वो हाई प्रोटीन है, और इससे 40% जो है वो मिल्क में ये देखा गया है कि 40% जो पशु है, दुधारू पशु है, वो 40% मिल्क को बढ़ा देता है, 40% के करीब बढ़ा देता है। और दूसरी इसकी क्वालिटी है कि ये वर्ष भर हरा रहता है, ये साल भर जो है नेपियर घास हरी रहती है। घर के पास में अगर आपके पास केवल एक नाली ज़मीन है, 200 स्क्वायर मीटर अगर आपके पास में लैंड है, उसमें अगर हम लगा दें तो उसमें कम से कम 4 पशु, 4 भैंस जो है वो बहुत आसानी से साल भर हम उसको पाल सकते हैं। इस तरह से नेपियर ग्रास प्लांटेशन वहाँ पर बहुत सक्सेसफुल हुआ, और अभी भी उसको बहुत तेज़ी में रिप्लिकेट कर रहे हैं और जगह पर। और इसके साथ साथ में दूसरा जो कुछ वेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड पर लेमन ग्रास जो एक एरोमेटिक प्लांट है, एरोमेटिक प्लांट जिससे कि लेमन का तेल निकलता है और इत्र भी उससे बनता है। तो लेमन ग्रास एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर आप लगा दें तो उसको ना तो पशु खाएगा, और ना उसको बहुत पानी की ज़रूरत है। बहुत सूखे में, बहुत ड्राई एरिया में, ज़ीरो फैटिक उसमें वो हो जाता है, उसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर भी उसके आसपास नहीं आते हैं। ये भी देखा गया है कि जैसे जो कुछ ऐसे पशु हैं जो कि खेती को नुकसान करते हैं, अगर हम उसकी फेंसिंग कर दें लेमन ग्रास की, तो वो पशु भी उसको नुकसान नहीं करते हैं। और ये बहुत तेज़ी में एक्सेप्ट किया गया वहाँ पर फार्मर्स के द्वारा इस तरह की एक्टिविटीज़ को, क्योंकि इसमें कम मेहनत की ज़रूरत थी, पानी कम था, और इसको जो जानवर हैं उसको भी नुकसान कम पहुँचा रहे थे। तो ये बहुत वास्ट एरिया में लेमन ग्रास का जंगली जी के भी सपोर्ट से हम बार बार वहाँ पर कई ऐसे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको ले गए हैं, और उनकी राय हमने कम्युनिटी के साथ में जानी है, और फिर आगे प्रोग्राम्स को बढ़ाया है। लेमन ग्रास में जंगली जी का हमको काफ़ी सहयोग वहाँ पर मिला है। और ये देखते हुए लेमन ग्रास में लगभग 4 गांव में जब हमने वहाँ पर इंटेंसिव प्लांटेशन किया है, तो गवर्नमेंट ने फिर ये लेमन ग्रास की यूनिट ये वहाँ पर इस्टेब्लिश की है, जिसमें कि हमको कोई इसमें फंड्स का कोई नहीं रहा, उनका पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट का है। ये अब गांव वालों के लिए ये एक्सट्रैक्शन यूनिट को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो दिस इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ द लिंकेजेस ऑफ द कम्युनिटी एंड द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट। ये 3 का एक लिंकेजेस है जो कि एक एक्टिविटी से, इस एक्टिविटी से यहाँ पर बना है।
Then we also rejuvenate the two water mills in this area. वाटर मिल्स घराट जिसको बोलते हैं उसको, ये इस तरह का वो ट्रेडिशनल वाटर मिल वहाँ पर थे पुराने, ये इस तरह का पुराना रहता था, लेकिन ये बहुत तेज़ी में ख़त्म हुए हैं, अबेंडेंड हुए हैं ये जो चक्कियाँ बनने की वजह से। और अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो कि लगभग 12 किलोमीटर 10 से 12 किलोमीटर लोग जो हैं उसको गेहूं को पिसाने के लिए, धान को पिसाने के लिए ले जाते हैं चक्कियों में। लेकिन ऐसे वाटर मिल्स हर विलेज में पहले हुआ करते थे जो कि बहुत तेज़ी में अबेंडेंड हुए हैं। इस तरह के वाटर मिल्स को अपग्रेड करने का काम हमने एक हेस्को ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर, उसके साथ में मिलकर के किया है, टेक्नोलॉजी में कुछ इम्प्रूवमेंट करके। और वो जो टेक्नोलॉजी है, अब ये इस तरह का वाटर मिल वहाँ पर ये बना है गांव में ही, अलग अलग हाउस में। जैसे एक गांव का एग्जांपल हम यहाँ पर जैसे है कि 23 हाउस होल्ड उस गांव में है, 23 पलीगाड उस गांव का नाम है, 23 वहाँ पर हाउस होल्ड थे। और वो लोग 7 किलोमीटर जो वुमेन है, महिलाएं हैं, वो 7 किलोमीटर गेहूं को पिसाने के लिए जाती थी। तो एक मीटिंग से ये बातचीत समझ में आई सबका, उन सब लोगों ने तैयार होकर के कहा है कि हम इस वाटर मिल को पुनर्जीवित करना चाहते हैं ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें, हम अपना कुछ इनकम को भी इस वाटर मिल से बढ़ा सकते हैं। तो ये 23 फैमिलीज़ ने मिलकर के, यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर के उन्होंने ये एक प्रोग्राम बनाया है। और इस तरह से ये वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सफैम इंडिया के साथ में मिलकर के हमने ये वाटर मिल वहाँ पर पुनर्जीवित किया है। और ये इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 3 बाहर ही वाटर मिल के बाहर 3 चीज़ें भी लिख दी हैं कि ताकि जैसे परेशानी क्या आपकी आ सकती है इससे, ये जो मशीन लगाने से आपको क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, इसके कारण क्या हैं और इसके समाधान क्या हैं। इसमें हम लोगों ने कोशिश ये भी किया कि 2 गांव के यूथ को, जो यूथ थे उनको भी ट्रेनिंग दी है ताकि अगर बीच बीच में ये कहीं कपड़ा ख़राब हो तो वो उसको दोबारा से उसको मैनेज कर सकें। और आज जो है ये पिछले लगभग 4 सालों से ये वाटर मिल बहुत अच्छे तरीके से गांव वालों ने अपने स्तर से अब इसको पूरा मैनेज करना शुरू कर दिया है। ये वाटर रिसोर्सेज हैं जो कि वाटरशेड में चेक डैम्स, पर्कुलेशन टैंक्स जो कि पानी को रिचार्ज करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग। ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से विलेजर्स जो हैं वो 2-2, 3-3 किलोमीटर से, और पहाड़ का एक, माउंटेन्स का एक सबसे बड़ा ये है कि जो वाटर है वो नीचे मिलता है और हमेशा ट्रैवल खाली हाथ नीचे को जाना है और भरी चीज़ें जो है वो ऊपर को ले जाना है। तो ये भी एक डर्जरी है वहाँ पर, और इसलिए ये वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये दिस इज़ अ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ये हम देख सकते हैं, दिस इज़ लो कॉस्ट आल्सो, 3000 लीटर का ये टैंक है और इसमें 3000 लीटर पानी हम आसानी से रख सकते हैं। और कभी कभी इस वाटर टैंक को वो वुमेन्स जो हैं वो स्टोरेज टैंक के रूप में भी यूज़ करती हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बर्तन होते हैं तो वो स्टोरेज एक टाइम पर उसको भर देती हैं और फिर इसको यूज़ करती रहती है ताकि टाइम उनका सेविंग हो सके। ये इस तरह का रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ये कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं जिनको कि मैनेज करने का यहाँ पर है, नेचुरल सोर्सेज। देन चाल एंड खाल, दीज आर द पर्कुलेशन टैंक्स जो कि स्टीप स्लोप्स पर बनाए जाते हैं और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो फिर नीचे पानी को फिर पुनर्जीवित करने का काम करते हैं। हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज़, इट इज़ आल्सो प्रमोटेड इन दिस वाटरशेड। हॉर्टिकल्चर में एक पूरा विलेज जो है वो बनाना विलेज के रूप में डेवलप हुआ है और हर हाउस होल्ड के पास में उन्होंने कम से कम 10,000 जो है वो केले का पेड़ है हर घर के पास में। और अभी उसमें धीरे धीरे हम पेपर जो इसके उससे पेपर बनाने का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इंट्रोड्यूस करने का वहाँ पर प्लान तैयार कर रहे हैं। और एक वेजिटेशन एक्सचेंज का भी वहाँ पर वाटरशेड टू वाटरशेड वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है कि जो बनाना विलेज है वहाँ से बनाना के प्लांट्स दूसरे वाटरशेड में वो एक्सचेंज करें और वहाँ से दूसरे जो प्लांट्स हैं वो इस वाटरशेड में दें। तो एक वेजिटेशन एक्सचेंज जिसमें कि मनी कहीं नहीं आता है। एंड वी हैव ए स्ट्रॉन्ग बार्टर सिस्टम जो हमारा होता था पहले, बिफोर दिस मनी एक्सचेंज, एक बार्टर सिस्टम हमारा होता था जिसमें गुड्स का एक्सचेंज होता था, उसमें पैसा कहीं इन्वॉल्व नहीं था। तो वो गुड्स एक्सचेंज में भी वेजिटेशन एक्सचेंज को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करने का काम किया गया है। दिस इज़ द लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी। ये पॉली हाउस, ये बहुत 2000 रुपये में ये पूरा पॉली हाउस बनता है एक हाउस होल्ड को, और ये एक फैमिली को, एक वुमेन को पूरे साल भर में कम से कम 17 से 20,000 रुपया की इनकम देता है। वो छोटे छोटे प्लांट्स को बेच करके, वेजिटेबल सीड्स को बेच करके वो 10 से 20,000 रुपया इससे अर्न कर रही है। और ये बांस का है, इसमें आयरन
स्टील और ये सीमेंट ये कहीं इसमें नहीं है, केवल बांस और ऊपर से इसका पॉलीथीन। दिस इज लो कॉस्ट, 2000 रुपीज़ ओनली। We also introduce some low cost technologies in this area, and also organize some capacity development program, capacity building programs for the villagers, some trainings, some workshops, community meetings, participatory appraisals. ये PRIs के लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए है, जो कि अपना PRA के थ्रू अपने विलेज का प्लान तैयार कर रहे हैं, अपने गांव का पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं, रिसोर्स मैपिंग एंड फैसिलिटी मैपिंग, और इसमें और इस तरह का, और यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं ये मिल करके, कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं उनके साथ में मिल करके ट्रेडिशनल नॉलेज एंड फॉर्मल नॉलेज को जोड़ करके हम कैसे इस विलेज का एक अप्रोप्रिएट प्लान तैयार कर सकते हैं। उसके लिए वहाँ पर लगभग हर गांव का विलेज का एक प्लान तैयार किया है, और इसकी ज़रूरत भी है जब हम 73 और 74 अमेंडमेंट में बात करते हैं कि आज पैसा है गांव में, विलेजर्स के पास में फंड है, लेकिन उसके पास में प्लान नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे इंटरवेंशन करें उनके साथ में, किस तरह से हम विलेज का एक अप्रोप्रिएट प्लान डेवलप करने की तरफ बढ़ें। दीज आर द फ्यू एक्टिविटीज़। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्टिविटीज़, इसमें आप देख सकते हैं जंगली जी प्लांट कर रहे हैं एक उसमें एक स्कूल में, स्कूल को छोटे प्राइमरी स्कूल्स को जोड़ करके, और उसकी जो सराउंडिंग है उसमें कुछ फॉडर है, फ्यूल है, और ये जो हॉर्टिकल्चर के कुछ जो फ्रूट्स के जो प्लांट्स हैं उनको वहाँ पर लगाया है, और बड़े सक्सेसफुल, मतलब वो उसमें फिर प्रत्येक बच्चे को उससे जोड़ दिया है उस प्लांट से, तो वो उसका सक्सेसफुल रेट भी काफ़ी है। वो प्लांट्स जो हैं वो अभी तक जो हैं पूरे अच्छे जो हैं वो जीवित हैं। एक पूरे उस वाटरशेड में एक नर्सरी कम डेमोस्ट्रेशन सेंटर भी इस्टेब्लिश किया है, जो कि वहाँ पर सराउंडिंग के जो विलेजेस हैं वो वहाँ के जो 2 यूथ हैं वो 2 यूथ इस नर्सरी में काम करते हैं साल भर, और वो इसमें छोटे छोटे अपने प्लांट्स को इसमें उगाएंगे, और ये वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पर ले जा रहे हैं, और तरह तरह के अलग तरह के प्लांट्स, इसमें बहुत सारे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे एलोवेरा है, ब्राह्मी है, या जैसे ये आंवला है, और ये सर्पगंधा है, और अश्वगंधा है, और ये सतावरी है। इस तरह के प्लांट्स यहाँ पर हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी इसमें हैं। और फिर इसमें 1 साल जो है वो 2 यूथ काम करके फिर वो वापस चले जाते हैं, फिर दूसरे विलेज के 2 लोग फिर आते हैं, वो इस फिर डेमोस्ट्रेशन सेंटर में काम करेंगे, और फिर वो कोशिश करते हैं कि इस सेंटर में आकर के जो कुछ उन्होंने सीखा है वो इसको फिर अपने गांव में इम्प्लीमेंट करें। इस तरह का वो नर्सरी जो है वो अपने गांव में भी लगाएं। तो धीरे धीरे इस तरह का रिप्लिकेशन वहाँ पर देखने में आ रहा है, हर गाँव में धीरे धीरे नर्सरी बननी शुरू हो रही है। ये कुछ विजिट्स हैं एकेडमिशियंस और रिसर्चर्स की इस पूरे एरिया में। नेचुरल रिसोर्स इंस्टीट्यूट कनाडा के कुछ साइंटिस्ट वहाँ पर आए हैं, जिन्होंने कि अपना इनपुट वहाँ पर दिया है पूरे उस वाटरशेड में, और पूरा स्टडी भी उन्होंने किया है। उसमें एक डेजर्टेशन भी वहाँ के नेचुरल रिसोर्स इंस्टीट्यूट मनीटोबा यूनिवर्सिटी ने उस वाटरशेड पर किया है। इसके अलावा जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं डिफरेंट, सजदानंद भारती जी, जंगली जी, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ जो प्रोफेसर्स हैं वो लोग भी अपना विजिट कर रहे हैं, और उन्होंने एक बुक भी उस पर अपना पब्लिश किया है। और डिफरेंट ऑक्सफैम हांगकांग एंड चाइनीज़ कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कि उस पूरे एरिया में विजिट किया है और अपने इनपुट्स इस वर्कशॉप में उसमें दिया है। थैंक यू वेरी मच।